بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجمیر شریف پہنچے تو وہاں پر ایک مندر تھا جو اجمیر شریف کا سب سے بڑا مندر تھا، جو صرف راجاؤں اور رانیوں کی عبادت کے لیے خاص تھا۔ مندر کے پاس ایک تالاب تھا، اس کا نام انا ساگر تھا۔ ہندو اس تالاب کے پانی کو انتہائی پوتر یعنی بابرکت مانتے تھے۔ ان کا ماننا تھا جو اس تالاب میں نہا لے گا اس کے سارے پاپ دھل جائیں گے۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں اس مندر میں رات کو اتنے چراغ جلتے تھے کہ رات بھر میں 3.5 من تیل ان چراغوں میں استعمال ہوتے تھے۔ آس پاس کئی دیہات ان مندر کے نام تھے، یعنی اس دیہات کی آمدنی اس مندر پر خرچ ہوتے تھے۔ مندر میں ہزاروں لوگ رہتے تھے جن کا کام آنے والے کی رہنمائی دیکھ بھال کرنا تھا کہ کون سا بھگوان بیٹا دیتا ہے، کون سا دیوتا تندرستی کا مالک ہے اور کس مورتی کی پوجا کرنے سے دولت مہربان ہوتی ہے۔ تو خواجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس مندر میں تشریف لے جاتے ہیں اور انا ساگر کے کچھ فاصلے پر چٹائی بچھا کر اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ عصر کا وقت ہونا چاہتا تھا، لہٰذا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اذان دینے کو کہا۔ کفر اور شرک کے گڑھ اجمیر شریف میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ پہلا اعلان تھا۔ وہ لوگ مکمل طور پر اسلام سے لا علم تھے، یعنی وہ نہیں جانتے تھے کہ اسلام کیا ہے۔ چنانچہ اذان کی آواز سن کر حیران ہو گئے اور وہ اپنے گھروں سے نکل آئے۔ سب مسافروں نے انا ساگر کے پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ سب ہندو حیران رہ گئے کہ بھگوان تو اندر ہے، آخر یہ لوگ آنگن میں کس بھگوان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جب شام ہوئی تو راجا کے اونٹ جو دن میں چرنے کے لیے گئے ہوئے تھے اپنے چرواہوں کے ساتھ واپس آنے لگے۔ اتفاق سے جہاں خواجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ جگہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی تھی۔ چرواہوں نے بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا، اٹھو بابا، اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ خالی کرو۔ اتنا سنتے ہی خواجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اتنی جگہ خالی پڑی ہے، اونٹ تو کہیں پر بھی بیٹھ سکتے ہیں، کیوں مسافروں کو تنگ کرتے ہو؟ وہ سپاہی پھر بھی نہیں مانے اور یہی کہتے رہے، یہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، اس جگہ کو خالی کر دو۔ آخر ان سپاہیوں نے بہت ہی بدتمیزی سے کہا، یہاں راجا کے اونٹ ہی بیٹھتے ہیں، اس جگہ کو خالی کر دو، یہاں اونٹ ہی بیٹھیں گے، تم لوگ کہیں اور جا کر اپنا ڈیرا لگاؤ۔ آخر کار آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اٹھتے ہوئے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کہا، اٹھو قطب الدین، یہ کہہ رہے ہیں یہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے تو یہاں پر اب اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ یہ کہہ کر کے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے اٹھ گئے اور اگلی صبح جب اونٹوں کی چرائی کو لے جانے کا وقت آ گیا، چرواہوں نے اونٹ کو اٹھانا چاہا تو انہیں پتہ چلا کہ اونٹ تو اٹھنے کے قابل ہی نہیں ہے، تو انہوں نے اونٹوں کو مار مار کر زبردستی انہیں اٹھانا چاہا، لیکن وہ بیٹھے ہی رہے۔ چرواہے پریشان تھے کہ جو اونٹ ان کے ایک اشارے پر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، آخر آج کیا ہوا ہے، یہ کیوں نہیں اٹھ رہے ہیں؟ آخر تب انہیں یہ بات یاد آئی کہ کل اس مسافر فقیر نے کہا تھا کہ چلو اونٹ ہی بیٹھے رہیں۔ لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے، کوئی کہہ رہا تھا کہ فقیر کوئی قابل جادوگر ہے، کسی نے خیال ظاہر کیا کہ وہ کوئی بھگوان کا اوتار ہے۔ دھیرے دھیرے یہ بات راجا تک پہنچ گئی کہ ایک مسافر فقیر نے راجا کے اونٹوں پر جادو کر دیا ہے۔ راجا نے خواجہ صاحب کو پیغام بھیجا۔ راجا نے خواجہ صاحب سے کہا کہ تم کیسے فقیر ہو جو بے زبان جانور کو باندھ کر کے رکھے ہو،
ये बेचारे भूखे प्यासे मर जाएंगे, इसीलिए मेहरबानी करके तुम अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान किसी को बद्दुआ नहीं देते और ना ही कोई जादू करते हैं। जाओ उन ऊँटों से कह दो, जिसके हुक्म से बैठे हो उसी के हुक्म से उड़ जाओ। अब जो जाकर उठाया गया तो वो ऊँट फौरन उठ खड़े हुए। प्यारे दोस्तों, गैर मुस्लिमों के दिल में उन मुसाफिरों के लिए दिलचस्पी बढ़ने लगी। 5 वक्त आज़ान होती और नमाज अदा की जाती। आखिर राजा तक ये बात पहुंच गई कि कुछ फ़कीर आए हैं जो मुसलमान हैं, 5 वक्त आज़ान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब से हाथ मुंह धो करके नापाक करते हैं, यानी कि गंदा करते हैं, और तो हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हैं और कहते हैं कि ये मूर्तियाँ पूजने के काबिल नहीं हैं, ये महज पत्थर की हैं, इसलिए इन्हें यहाँ से उठाया जाना चाहिए। राजा ने फ़कीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो, तुम लोग हमारे पवित्र तालाब में हाथ डाल करके नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया, और भी तो दुनिया यहाँ पर आती है, हमारे पानी लेने से कौन सी कमी आ जाएगी। वो कहने लगे, वो सब हमारे धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो, आइंदा तुम लोगों ने तालाब को गंदा किया, हम सख्ती से पेश आएंगे। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से फरमाया कि कुतुबुद्दीन, शायद ये लोग हमारे पानी लेने पर कोई फसाद बर्पा करेंगे, जाओ एक मस्कीज़ा पानी ले आओ ताकि ज़रूरत के वक्त कुछ पानी तो मौजूद हो। लिहाजा हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने उनसे फरमाया, चलो हम मस्कीज़ा तो भर लेते हैं, तो इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारा जिस्म पानी से नहीं छूना चाहिए। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि सीढ़ियों पर जाकर बैठे और मस्कीज़ा पानी में डुबो दिया। जब वो भर गया तो हज़रत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने जब मस्कीज़ा ऊपर खींचा, वो मस्कीज़ा जब पानी से बाहर आया तो अना सागर का सारा पानी सूख चुका था, गोया सारा अना सागर का पानी मस्कीजे में बंद हो गया था। अना सागर का खुश्क होना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया और वो रो रहे थे कि हम जो गुनाहों की गठरियाँ लाते हैं और अना सागर में नहा करके उनसे छुटकारा पा लेते हैं, अब हम उन गुनाहों का बोझ किधर लेकर जाएंगे। सारे इलाके में खबर फैल गई कि मुसाफिर फ़कीर ने जादू के जोर से अना सागर को खुश्क कर दिया है। राजा उन सूरत हाल से बहुत परेशान था। उसने अपने वज़ीरों को बुलाया। सब ने यही कहा कि फ़कीर या तो जादूगर है या तो कोई कामिल फ़कीर है। साथ ही वो परेशान हुए। अजमेर की रौनक तो थी, अना सागर के दम से, उसी की वजह से लोग दूर दूर से अजमेर आते और अपना ईमान ताज़ा करके लौटते थे, यानी उस पानी में डुबकी लगाते थे। तो बादशाह के वज़ीर बादशाह से कहने लगे, अना सागर का खुश्क हो जाना हमारे धर्म के प्रचार प्रसार को बहुत बड़ा धक्का लगेगा और ये बहुत बड़ी बात होगी। आखिर तय पाया कि फ़कीर से बात की जाए। आखिर वो चाहता क्या है, उस फ़कीर को चाहिए क्या। अगर उसकी ज़रूरत खाने की चीज़ों की होगी तो हम मान लेंगे, या फिर सब मर्द औरत बच्चे जा करके उस फ़कीर को खुशामद करें कि हम लोगों को इस परेशानी से निजात दिलाओ, हम पर करम करो। हम पाप का बोझ उठाए किधर जाएंगे और कैसे सुकून पाएंगे। ये काम ज़्यादा आसान था, यानी पानी में डुबकी लगाना सबसे आसान काम था, जिससे हमारे गुनाह दूर हो जाते हैं। लिहाजा तमाम लोग ख्वाजा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के पास आए और बोले, ख्वाजा साहब,
तुम भी वजू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा अना सागर हमें लौटा दो। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से फरमाया, जाओ कुतुबुद्दीन, मस्कीज़ा तालाब में वापस डाल आओ। जो ही मस्कीज़ा तालाब में उल्टा किया, अना सागर किनारे तक उछल आया। उस पानी ने कई दिलों को धो डाला था। हिंदू कौम अपनी किताबों में भी, हिंदू इतिहासकार इस बात को मानते हैं। उस शाम 32,000 हिंदू कलमा पढ़ कर के मुसलमान हुए थे। उन हिंदुओं के मुसलमान हो जाने पर हिंदू पंडित और आम हिंदू में गमो गुस्से का तूफान उठ खड़ा हुआ था, जो सोच में पड़ गए थे कि ये फकीर कुछ दिन मजीद इधर रह गया तो हमारी मूर्तियों को नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित को बुलाया और उसे ख्वाजा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से मुकाबला करके जल्द से जल्द उन्हें हराने को कहा और अजमेर शरीफ से बाहर निकालने का हुक्म दिया। पंडित अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसकी इल्म और काबिलियत का दूर दूर तक धूम मची हुई थी। उसने राजा को यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा को अच्छी खबर सुनाएगा। वो पंडित ख्वाजा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के पास आया और उल्टे सीधे सवाल करना शुरू कर दिया। ख्वाजा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने खामोशी इख्तियार की। जब पंडित हद से बढ़ करके शोर मचाना शुरू कर दिया तो ख्वाजा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुरा करके कहा, ए पंडित, तू शोर मचा रहा है, मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता देख रहा हूँ। इस निगाह और लहजे में न जाने क्या जादू था कि पंडित कदमों में गिर गया और रोते हुए बोला, ख्वाजा, जिस धर्म को तुम मानते हो उसी धर्म में मुझे शामिल कर लो। सब लोग जो मुनाजरा यानी बहस तकरार देखने आए हुए थे, देखते ही रह गए और हैरान और परेशान थे। ये क्या हो गया है? जो खरीदने आया था वो ही बिक चुका है, जो जीतने आया था वही हार चुका है। पंडित ख्वाजा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के हाथों से मुसलमान हो चुका था। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, ये अल्लाह वालों की शान होती है। वो जब अल्लाह के हो जाते हैं तो सारी दुनिया उनकी हो जाती है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हमको इन बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और ख्वाजा गरीब नवाज के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।